Friends, now we have the privilege, honor to invite Taliyogi Pandit Suresh Talwalkarji. You might remember, perhaps some of you don't know, that we have had a baitak with him at Guruji's residence. And all these baitaks, for your kind information, they're all available on YouTube. So should you have missed anything, you can go back and refer to. And at that time, Panditji had also spoken about Laital, perhaps predominantly centering around tabla as such. But he also felt that there was lots of areas that still needed to be covered given his exhaustive knowledge, expertise, and continuously thinking nature. So we thought we shall have one more, and perhaps this time one more facet of himself as a tabla player, as a percussionist, as a pakhavaj player, and as a guru will come forth. And I think I have the privilege of requesting Sureshji to come on the stage and start. And I will hand over the microphone to Guruji to engage him in the dialogue. And today we shall have Aditya Khandwe on the vocal support. Please take your seat. Yeah, Aditya Khandwe on vocal support. Ashay Kulkarni on the tabla, who is also Sureshji's student, and Abhijit Shinkar on the harmonium. So friends, may I please request you to switch off your mobile phones, and thank you all for coming. Friends, one more small item I forgot to tell. Danesh is in the 10th grade and he is a 14-year-old boy. He needs your blessings, so let's give him a big, big hand. Danesh, well done. Over to you, Guruji. Friends, I'm so happy that we got a full hall. Kale Sahib is also here. He just got up and saw and is very happy. And he says that so many lovers of Sureshji and tabla both are here. You will wonder why I'm sitting here on a chair down below. Many of you know perhaps that I'm only 91 years old now. And after 2 months, I'll be 92. So sitting on the stage, sitting okay, getting up okay, but without a backrest for 2.5 hours to enjoy Sureshji's music would be very difficult. So I thought I will take a chair, with his permission sit here, so that we can. सबसे पहले तो ये कि सूरज जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप दोबारा हमारे बैठक में आए हैं. We call it all-inclusive तालीम, as Suvarna explained, because the idea was originally, frankly, कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उसको मौका मिले बड़े बड़े लोगों के सामने उनका आशीर्वाद लेने का. तो उस 15-20 मिनट हो बजाते हैं, उसके बाद मेन जो आइटम होता है, जो आज भी वो लड़का छोटा सा बच्चा बजाया अब वो सीख रहे हैं सब. लेकिन उनको ऐसा कहते हैं खान साहब हमारे कि एक पब्लिक के सामने बजाना वो 1 महीने का रियाज के बराबर होता है. सो इसलिए जो उसको एक्सपोजर मिला, इसलिए ज़रा आपका आशीर्वाद लेने के लिए बिठाया था. अब सूरज जी आप कुछ कहे थे कि आपको पहले कुछ बोलना है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन वगैरह बाद में पूछूंगा.
पूजा से पावन हो मन, पूजा से पावन हो मन, पूजा से थोड़ा गाने बजाने से शुरुआत होनी चाहिए ऐसा क्या समझ क्या कर। बात, बजाने की नहीं, क्या बात है। ये जो पेशकार था, मैंने इसके पीछे क्या मेरी भूमिका है जी वो भी मैं विशद करना चाहता हूँ। पहले तो ठेके की बढ़त हमारे गुरुजी नागेशकर गुरुजी, वो
उन्होंने कहा कि पहले ठेके की बढ़त होती थी और फिर पेशकार अच्छा, निकलना चाहिए उसी से। तो जैसे पूजा सेवा ये झपताल है, मगर अब इसी से बोलो से पूजा सेवा तो कोई भी फ्रेज इतना तो तय करके नहीं आते कि अभी आड़ी में जाना है, फिर दुगुन में जाना है, दुगुन में जाना है, आड़ी में जाना है। कोई भी जो फ्रेज अंदर मन में लगे उससे बननी चाहिए बात। ये इतना तो फिक्स नहीं होता है पेश का। मतलब ये कुछ मेरा, लोगों का फिक्स होता है हाँ ये मेरे को पूछना और फिक्स भी अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो फिक्स करने वाले लोग हैं वो भी अच्छा कर सकते हैं कि यही अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक होती है कला, विद्या तो बाहर से अंदर जाती है, मगर बाहर अंदर से बाहर आती है वो कला। तो कला बाहर आनी चाहिए और उस टाइम में उस कलाकार को क्या लगता है, क्या फील करता है, वो बाहर निकलनी चाहिए बात। और ये बात मुझे गाने बजाने से मिली। नहीं। अपने सुरेश जी जो आपने कहा पिछले दफ़ा जो आपने उसमें आपने शुरुआत किया था कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का, हाँ, तो अभी जो सबकॉन्शियस माइंड से मतलब उपज लोग का ये कहना है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों लगाते हैं तो टेंशन होता है, और जब सबकॉन्शियस म्यूज़िक बनाता है और सबकॉन्शियस उसको पेश करता है, हम लोग तो जब बात वही हुई हाँ, जो आप कह रहे हैं। बात मतलब मैं मेरी किताब में भी मैंने लिखा है अनुसंधान और अवधान। जी, अनुसंधान हमको एक तार लगनी चाहिए बजाते टाइम, लेकिन साथ साथ में एक अवधान भी रखना पड़ता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो भी सही हो रहा है, बोल ठीक बज रहे हैं या नहीं, बोलों की बढ़त भी ठीक हो रही है या नहीं, उसकी लय भी ठीक है या नहीं, ये अवधान भी रखना पड़ता है। और साथ साथ में अनुसंधान भी साधना होता है, अनुसंधान को भी। बिल्कुल। तो ये लड़ाई झगड़ा तो चलता ही है। नहीं झगड़ा नहीं, वो बड़ा मीठा झगड़ा है। नहीं मीठा झगड़ा है, मगर उसके लिए मतलब एक तपस्या होती है और हाथ की बात नहीं होती है। मतलब अभी करके आ ही जाएगा ये कह नहीं सकते। नहीं अजी, आज का जो सब्जेक्ट रखा है हमने आर्टिस्ट्री ऑफ लय एंड ताल, और लय और ताल के जो मेल है उसमें कहाँ किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए, ज़रा थोड़ा वो समझाइए आप। क्या लय के 3 स्थितियाँ हैं। एक तो है लयदार, दूसरा है लयकार और तीसरा है तालिया। अब लयदार पहले मैं मोटे मोटे शब्द में लयदार किसको कहते हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि लय को एक स्थिति में रखते हैं, एक कायम लय में, उसी लय में 15 मिनट ठेका होने के बाद खुद को पूछने का कि इसी लय में मैंने शुरू किया था क्या ठेका। अगर अंदर का अपना मन बता देगा कि हाँ इसी लय में शुरू किया है। इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। हमारे गुरु जी गजानन राव जी, मैं विदेश से गया, 2-3 महीने गया नहीं था, तो उनके घर गया तो उल्लास जी को सिखा रहे थे और भी 2-3 स्टूडेंट उनके बैठे थे सिखा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सुरेश आ गए, मेरा चलने का वक्त हो गया, तो हम दोनों चल कर आते, तुम लोग ऐसे कायम रखो ये। तो गा रहे थे, बोले मैं आधे घंटे में आता हूँ, तुम लोगों का चलने दो। अब वहाँ से वो जो निकले हम लोग, मैं उनके साथ निकला,
तो ऐसे बोले कहाँ कहाँ प्रोग्राम हो गए तुम्हारे? जर्मनी, अच्छा, इंग्लैंड, ठीक है। आधे घंटे के बाद सब पूछताछ करके जैसे घर सामने दिखाई दिया तो उन्होंने कहा ये देखो धा तीर कीट दिन, ये बोले लेके जाओ तुम, ले। क्या बात। हाथ में जैसे पेड़ा देते हैं ना वैसे उन्होंने ये लय दे दी। और मैं अंदर जाने लगा तो बाएं के ऊपर, उस टाइम में तबला तो अलाउड नहीं था, बाएं के ऊपर ही ठेका लगता था, तो बाएं की वो जो ये थाप है ना वो सुनाई दी कि मेरी ताली और बाएं की थाप एक ही है। क्या बात है। मगर और नजदीक गया तो वो मात्रा भी वही थी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये लयदार अवस्था है, ये लयकारी नहीं है, लयदारी। ये लयदार अवस्था है। और लयकारी तो मैंने लास्ट टाइम वो बताया क्या, बता चुका हूँ लास्ट टाइम के बैठक में, यूट्यूब पे है वो। हाँ यूट्यूब में, कि मुंह से मत्त ताल के ना, इस हाथ से 3 ताल, इस हाथ से 1 ताल, धा तत धागे ना दातर कट धागे ना तू ना कत्ता धिन दिन ना धिन दिन ना धिन दिन, धागे तेरी किट तू ना कत्ता, धागे तेरी किट धीना, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता त्रा दिन दिन दा धा तत धागे ना दातर कट धा धीना तू कत्ता, धागे ना दिन दिन ना धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा कत्ता, धागे तेरी किट दीना। मतलब कहीं से भी अगर किसी 8 मात्रे से 4 मात्रे से ताल बदलना है तो बदलना आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। ये घुमाना भी आना चाहिए। तो इसकी ये लयकारी है, और इस तरह की प्रकांड लयकारी होती है। जी। तो और क्लिष्ट और बहुत अवघड़ लयकारी जो होती है वो कर्नाटक में होती है। अच्छा। तो वहाँ के गुरु से मैंने रामनारेश्वरन जी मेरे गुरु जी, उनसे मैंने तालीम ली है लय ताल की। तो उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि तक्कीट इतनी ही रचना है, मगर देखिए तिन तिन तात कदेन दिन नाना दिन दिन नाना, की ट ट 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 की ट तकिट दा तकिट दा तकिट दा। तो ये पहले 1:45 हो रहे हैं, 1:15 3 3 तात का दिन 1:15 1:15 1:15 तकदीमी तकिट तकदीमी तकिट तकदीमी तकिट, बाद में 1:30 तकिट 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 तकिट, बाद में 5 1:15 3 3 तात का दिन दिन दाता अकी ट ट की 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 ट तकिट दा तकिट दा तकिट दा। उन्होंने उनके पास में गया था तो उन्होंने पहले रूपक हमको सिखाया। बोले रूपक जलद फास्ट कैसे कहते हो? तो मैंने कहा 3 3 ना दिन ना दिन ना 3 3। बोले खुश रहे हो गए। अच्छा बोले इसमें कुछ क्या काम कर सकते हो? मैंने कहा नहीं यही तो ठेका पकड़। तो बोले देखो इसको 7 मात्रा कह रहे हो ना, 3 3 ना दिन ना दिन ना 3 3 ना दिन ना दिन ना 3 3 ना। तो इसको बोले 7 मात्रा मत कहो, पहले उन्होंने आधी मात्रा काउंट करने सिखाई मुझे। अच्छा। वो कैसे देखे? 3 3 ना दिन ना दिन ना 3 3 ना दिन ना 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5 1 2 3.5। तो इसमें फिर उन्होंने तरह तरह के हमको लेसन्स बताया कि
तो ये जब आप साउथ इंडियन कर्नाटक की बात कर रहे हैं, लय का काम और अपना हिंदुस्तानी में, उसमें कोई एक दूसरे से सीखने का है कुछ? उनका कोई पहलू में बहुत आगे हैं, हम लोग कई पहलू में बहुत आगे हैं। हाँ बिल्कुल। सो उसके बारे में कुछ, क्योंकि सुनते तो यही है कि कर्नाटक लय बहुत लयदार बहुत होते हैं और उसमें बहुत काम करते हैं। साहित्यक नहीं है, जी। लय ताल का साहित्य कम है। अच्छा। हमारे यहाँ लय ताल का साहित्य बहुत है। अच्छा। जैसे पेशकार है, कायदा है, रेला है, रव है, अलग फॉर्म से। अब बहुत फॉर्म से है वो। उनके यहाँ तो नड़ई और कोरवई है। जब आपने ये बात और एक आध दो हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फॉर्म नहीं है। फॉर्म नहीं है। अच्छा सुरेश जी, एक सवाल अभी मेरे को जो पूछना था, वो यहाँ सब तबला के स्टूडेंट्स बैठे हैं, तबला के विद्वान बैठे हैं, लेकिन जब यूट्यूब पे जाता है तब काफ़ी लोग दुनिया में सुनते हैं उसको, और उसमें काफ़ी हमारी पर वो सवाल आते हैं कि भाई ये सब बड़े बड़े महारथी लोग के, इनिशिएटेड लोगों के लिए तो आपकी बातें टेक्निकल ठीक है, लेकिन हमको ये तो समझाइए कि भाई ये पेशकार हो रहा है, उसके बाद ये इसके बाद ये जो अलग अलग फॉर्म है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या तबला अच्छा लगता है, लेकिन उसकी समझ नहीं आती, और कि कैसे उसका क्वालिफाइंग कोई बोल है जिससे पता लगे कि भाई ये कायदा है कि ये पेशकार है। उसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं सिंपल, कि लोग समझ सके? सिंपल मतलब जी। आलाप जो होते हैं वो पेशकार में होते हैं। जी। जो आलाप की लय होती है, हाँ जी। वो एक पेशकार की लय होती है। जी। और फिर वो क्लाइमेक्स की तरफ जाता है तो कायदे रेले में भी जा सकता है पेशकार का क्लाइमेक्स अच्छा। क्रिया। लेकिन ज़्यादातर विलंबित क्रिया बचती है, लेकिन फिर भी वो विलंबित कितनी भी हो, फिर भी वो चौगुन लय में बचती है। जैसे धी एक दिन दातित दा गिन्ना धातित दातित दा दा धिन्ना, ये कहते हैं, मगर ये एक मात्रे में 4 शब्द आते। तो लय कितनी विलंबित हो सकती है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। सही बात है। तो मतलब लय ताल का साज है ये, तो उसकी लय तो सुर जो है वो स्थिरता से प्राप्त होता है, और लय ये गति से प्राप्त होती है। तो गति अगर रुक जाए तो सुर हो गया। तो वो तो गति दिखनी चाहिए, और गति को कायम रखना ये एक जिम्मेदारी बनती है। क्या बात। लय के बारे में तो समझाया आपने, थोड़ा सा ताल के बारे में। ताल के बारे में ऐसा है कि लय से तो ताल बनता है, जैसे सुरों से राग बनता है वैसे ही तो लय से ताल बनता है। और फिर ताल के खंड होते हैं, वो खंड से ताल होता है। एक जमाने में ये साज थे भी नहीं, तबला था भी नहीं, और ताल क्रिया तो पहले से है। हाँ तालों के दशप्राण है, और वो ताली से सिद्ध होते थे, जी। ताली के खंड से ही। और ताल और ठेका, ठेका ये ताल की पहली बंदिश है। क्या बात है। ठेका ये ताल की पहली बंदिश है, मगर वो ठेका कभी कभी ताल को भी मानता नहीं है। मतलब जैसे 3 ताल के पहले मात्रे को धा, 5वें मात्रे को धा, 9वें मात्रे को ता चाहिए, वहां धा है। हाँ, और जहां 13वें मात्रे को ता है, जहां धा चाहिए वहां ता है। और इतना ही नहीं, तो 14वें मात्रे के धीन को अगर वजन नहीं देंगे तो ताल की आकृति, ठेके की आकृति सिद्ध भी नहीं होती है। जैसे कि धा तीन तीन ता, ये जो है जैसे कि
अब अरविंद जी ये जो बात है कि जो 14वें मात्रे का धीन है, इसका जिक्र कई तालों ताल 3 ताल के ताली में है ही नहीं। तो ये ठेका जो है ना, वो एक अपनी चाल है, उस ताल की अपनी चाल है। कुछ ताल तो होते हैं कि जैसे झपताला सीधा सीधा है, दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना, तो हमेशा सेम मैचिंग और कॉन्ट्रास्ट मैचिंग, ये तो निसर्ग का तत्व जो है हाँ, तो ये तो होता ही है। जैसे ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट, ये भी मैचिंग होता है, और वाइट पैंट वाइट शर्ट ये भी होता है। तो हम लोग ताल की तरफ जो पुराने आ गए उसको हम तो बदली नहीं कर सकते हैं, जो जिसकी मर्जी, लेकिन वो ताल क्रिया भी दिखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसी बारे में अभी 9:30, 7:30 ये सब जो 12:30 वाला मामला निकला है, तो उसका फिर छंद कैसे बनाएंगे आप? क्यों नहीं? जरा समझाइए ना, क्योंकि हमने तो देखा है कि झपताल में से एक मात्रा काट करके बजा लिया, तो ये एक 9 मात्रे का ताल में 9 मात्रा वो बना 9 मात्रे का ताल बताता हूँ कि जिसके खंड जी। 4.5 4.5 है। हाँ, हाँ, बसंत तेरे रे अब देखिए, आई बसंतन की बेला, आई बसंतन की बेला, छाई बहार चहुआर गावे पपीवा करे शोर, आई बसंतन की बेला, आई 1 2 3 4.5 1 2 3 4.5 धा धिन धा धा 3 ता 3 धा धा धिन धा धिन धा धा 3 ता। क्या बात। इसका नाम पद्मदीप है, लेकिन क्योंकि दीपचंद जी है। अभी बाहर सुनते हैं तो ये ठेका तो नहीं सुनते हैं ना, हाँ जो भी आपने ठेका समझाया, इसका छंद समझाया, हाँ। अब जब बाहर सुनते हैं 9 मात्रा के साथ, तो ये ठेका तो सुनते नहीं है ज्यादा। नहीं, 9 मात्रा के बहुत ताल है, अच्छा बसंत ताल है जी। मत्त ताल है। एक्चुअली मत्त ताल 18 मात्रे का है, लेकिन वो एककल द्विकल ऐसा कुछ कहते हैं, उसकी वजह से। अच्छा, अभी पखावज के साथ कंपेयर, आप एक दिन टेलीफोन पे हमारी बातचीत हुई थी कि पखावज के ऊपर बोलना है कुछ, तो उसका लयताल का जो संबंध है तबले के साथ,
सो पखावज के साथ भी कैसे है और दोनों का कैसा मेल है? नहीं, एक तो पखवाज पंजों के साथ बजता है, पंजों से जी, बजता है, जी और ये उंगली से बजता है जी। तबला, ये तो सब जानते हैं। मगर इसका डेफिनेटली असर साज पे क्या होता है, जी धा के जो वेरिएशंस है और एक्सप्रेशंस जो है, वो तबले के बराबर पखावज में है ही नहीं। अच्छा जैसे कि पखावज का धा अगर हो तो ये, अब ये खुले धा को कितना एक्सप्रेशन मिलेगा? सही एक ही मिलेगा। आप चाहे लाउड बजाइए, सॉफ्ट बजाइए, लेकिन एक्सप्रेशन एक ही मिलेगा, अच्छा। यही। अब ठीक एक तीन ताल के धा के एक्सप्रेशन देखिए, पहले मात्रे का धा और चौथे मात्रे का धा, क्या बात है। कितना फर्क है देखिए। अब चौथे मात्रे के धा को मैं बाया बजा भी नहीं रहा हूं, बाया बजा भी नहीं रहा हूं, और बजा देंगे तो ऐसे लगेगा कि मशीन का बज रहा है। ये लगेगा। तो तबले ने हम क्या दिया? ये तबला साज तो पखवाज के पीछे से आ गए, बाद में आ गए, लेकिन और स्ट्रांग बन गया। काना मागून आला आणि तिखट झालं म्हणतात ना। इवोल्यूशनरी प्रोसेस में है। हाँ, तो अभी वो क्या हो गया है कि जो पखवाज के साथ ध्रुपद गवैया ताली पकड़ता है, हाथ में ताल रखते हैं ध्रुपद गवैया, और पखवाज वादक बजाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को बजाने से पता नहीं लगता है कौन सी बीट चल रही है। ठेका लगाएंगे पता नहीं। तो इसके ये विलंबित हो, फिर भी विलंबित से तीर की ये चलता है। किसी गाय को बीच में पूछेंगे तीर की मात्रा कितनी मात्रा है, तो सोच कर गिन कर बताएगा, बाद में बताएगा, लेकिन वो सम पे पहले आता है। आता तो है। हाँ, और ये आने की वजह ये है कि ठेका जो है वो स्ट्रांग बनता है तबले की वजह से, और इसके जो एक्सप्रेशन जो है धा धीन के, उसकी वजह से वो स्ट्रांग बनता है। और फिर पखावज साज के बारे में मैं सिर्फ अन्यायकारक लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि तबला जो निकला, तबले ने तो पूरी पखावज की ही भाषा एडॉप्ट की। धा ना ता कृधा त्रक तिरकिट सारी भाषा तो पखावज की ही तबले ने एडॉप्ट की भाषा, लेकिन बजाने की जो बात है वो साज अलग होने की वजह से अलग हो गया, और मिजाज भी अलग हो गया। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये पखावज का और खास करके तबले का भेद मैं मानता हूँ। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि पखावज में अरविंद जी विस्तार क्षम रचना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था। विस्तार अक्षम में विस्तार अक्षम आपका पेटेंट है वो? नहीं, आप माइंडकर जी बैठे हैं, उनका भी पेटेंट है ये सब्जेक्ट। उन्होंने तो बहुत अच्छे और बहुत अच्छी खूबसूरत किताबों में लिखा है भी उन्होंने। तो विस्तार क्षम रचना क्योंकि खाली होती है, ये जो खाली होती है, खाली, जी ये केवल तबले की देन है, क्या बात है। और किसी साज की नहीं है। मैं अभी मेरे पास वेस्टर्न ड्रम सीखते हैं, कैजुअल सीखते हैं, बहुत लोग सीखते हैं, तो मैं शिक्षा यही देता हूँ, खाली भरी की शिक्षा सब लोगों को देता हूँ। मैंने कहा खाली में बेस ड्रम यूज करने का नहीं,
इवन फ्लोर बेस्ड ड्रम भी यूज करने का नहीं मैं बोलता हूँ। अभी थोड़ा सा आगे ले चलूँ मैं। आपने एक दफ़ा बोला है कि तबला साथ और तबला संगत बहुत फर्क है, जरा समझाइएगा। साथ तो ख्याल की होती है, ख्याल की साथ होती है, और तंतु वाद्य की संगत होती है, या कथक की संगत होती है। और साथ मतलब ऐसा है कि आप आगे होइए, मैं आपके पीछे हूँ, साथ। और हाथ में मैं हाथ डालकर चलना, ये संगत है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, थोड़ा सा एग्जाम्पल तो दिखाइए। तो मतलब एकादो द्रुपद का, द्रुपद तो द्रुपद में संगत करूंगा। ठीक है। मतलब बंदिश ही इट सेल्फ ताल का आधार बन जाती है, तो ठेका लगाना काय को। अगर बंदिश ही ताल बता रही है, खेलन वाजे आनो के खिलाड़ी, आनो के ये खिलाड़ी न जा सकी कौन खेलन रे खेलन लुक चुप छोरता लुक चुप छोरता रंग भरी पिचकारी, रंग भरी पिचकारी, कुमार मुखा पर, कुमार मुखा पर फेंक ऐसो वतही अनारी सकी कौन ये खेलन क्या अन्ना साहब रतनजनकर जी की बंदिश है। वाह, क्या बात, क्या बात। तो ये बंदिश सिर्फ द्रुपद धमार की बंदिश ही ऐसी होती है कि ताल ही कहती है, ख्याल की बंदिश ताल नहीं कहती है। से देर अगेन, जरा फिर से बोलिए। ख्याल की बंदिश कभी भी ताल कहती नहीं है। ख्याल तो ताल में गाना होता ही नहीं है, ठेके में होता है। अब जैसे कि आमिर ताला का कट कर। चमेली बोली अब तबला वादक देखता है कि दूसरी मात्रा में कहाँ दे, वो गायक की तरफ देखता है, गायक की भी उसी की तरफ देखता है, और पहला आवर्तन आ गया सम पे। ये अक्सर होता है। आप भी तो संगत करते हैं। मैं करता हूँ,
और फिर इसका वजह भी मालूम होती है कि वो बंदिश अगर वो आगरे वाला गाने वाला है या ग्वालियर वाला है तो उसकी लय या बंदिश की क्या है पता है। अच्छा। और बहुत बार उल्लास जी के साथ संगत करता हूँ ना, वो कभी कहते ही नहीं है कि कौन सा ठेका लगाना है, कभी बताते नहीं झुमरा या ना, तिलवाड़ा या तीन ताल। वो जब बंदिश का मुकड़ा आता है ना तो अपने आप मेरा धा या धीन लग जाता है, क्या बात है, क्या बात है। अपने आप। बहुत बार ऐसा हो गया है। तो दूसरी मात्रा ख्याल की बताती नहीं ले, और इसी के कारण वो साथ होती है। मतलब ये आपका कहना है कि लयदार और लयकार दोनों होना चाहिए। नहीं, वो थोड़ा लयदार लेकर अलग है थोड़ा, मगर पहले प्रिंसिपल जो है जी वो ख्याल लय बताता नहीं है, ठेके की लय नहीं बताता है, जी। और इसी के कारण वो साथ होनी चाहिए। अगर एक बार ऐसे हुआ था, मैं नाम तबला वादक का नहीं लूंगा, लेकिन हमारे गुरुजी के साथ गजानन राव जी के साथ छबिलदास हाई स्कूल में वो गा रहे थे, तो तबला वादक ने फिक्स किया था कि आज बोले इनकी निकाल दूंगा मैं। और जैसे उन्होंने चमेली फूली चंपा या कोई ख्याल कहा मुखड़ा, तो उन्होंने वहां से चक्रधार बजाना शुरू किया। तो चक्रधार खत्म करके अब चक्रधार बजाए तो उसका आधार क्या है? आधार कुछ नहीं था, वो तो रुक गए। उनका चक्रधार खत्म होने के बाद बोले हो गया खत्म, बहुत अच्छा, अभी लगाइए टेका। तो सारे लोग हंस रहे थे। ये इसमें हमारी परंपरा बताती है। जी। परंपरा का मूल्य है कि ख्याल के साथ ऐसे करना नहीं है, गद्दारी ये करना नहीं है। जी। ये प्रिंसिपल बताते हैं। मुझे ये किस्से के लिए मैं किस्सा नहीं बता रहा हूँ, जी क्योंकि प्रिंसिपल क्या है उसमें, ख्याल के साथ इवन द्रुत का ख्याल होता है ना, द्रुत का मध्य लय का, जी। वो भी बंदिश लय के साथ कैसे आगे पीछे करती है। देखिए, मन मोहन ब्रजराज दुलारो, मन मोहन ब्रजराज दुलारो, मन मोहन ब्रजराज दुलारो, हंस हंस करके रस बतिया हम सो नेहा लगाए और आए, मन मोहन ब्रजराज। इवन ये बंदिश भी मात्रा नहीं बता रही है, जी। तो उसके साथ वो एक मिजाज का ठेका ऐसे लगना चाहिए कि तानपुरे का ये ठेका जो है ना, वो गायक के पीछे दो तानपुरे होते हैं और तबला ये ठेका लय का तानपुरा बनना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तानपुरा बजना चाहिए, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है ये। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और वो एक ऐसा ठेका होना चाहिए कि आप चाहे गाते 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 क्या सोच रहे हैं, घूम रहे हैं, तानों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं आपको खुद को, लेकिन अपने आप सम पे आ जाते, क्योंकि वो ठेका ऐसा दिमाग में चलता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट करने की भूमिका तबला वादक की होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसको गलत साबित करने में 2 मिनट लगते हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं है। एक एग्जाम्पल हुआ था बहुत ज़माना पहले, यहाँ बड़े मंदिर में वे खां साहब बजा रहे थे। हाँ तिरका खां साहब उनकी संगत कर रहे थे, और इसमें तार टूट गया, तो 2-3 मिनट लगी नेचुरली, लेकिन उसके बाद दोनों ने इसी जगह से वही लय में वही मात्रा से शुरू किया। हाँ। मतलब 3 मिनट का गैप के बाद भी वही, अब जो बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसके साथ में संगत साथ की बात कर रहे हैं, तो आप वोकल म्यूजिक को साथ रखते हैं लहरे की जगह। हाँ। उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, उसकी सीधी सी बात है। अभी मैंने जो जपताल बजाया
अगर पूजा द र र र र र र र र र। अगर ये हारमोनियम में, क्योंकि हारमोनियम के शब्द का वजन कैसे आएगा? पूजा से पावन हो मन, पूजा से पावन हो। अगर पा आ जाता है तो पा का जो वजन सम को जो प्राप्त होता है, और बंदिश के शब्दों की, बंदिश के शब्द पहले क्या बताते हैं? मीटर बताते हैं, और मीटर का सबसे पहला संबंध ताल के साथ है, ताल के साथ है। और एक बार बंदिश सुनने वाले अगर पूजा से पावन हो मन, पूजा से पावन हो मन, पूजा से पावन। अगर ये लोगों सुनने वाले के दिमाग में अगर ये बैठ जाए ये बंदिश, तो ये बंदिश बैठना मतलब क्या हो गया? तो ताल हुक्का आवर्तन दिमाग में बैठ गया। और एक बार ताल का आवर्तन दिमाग में बैठ गया तो आप ताल में क्या हो रहे हैं वो आप समझने के लिए आपका माइंड तैयार हो जाता है, सुनने के लिए तैयार हो जाता है। सुरेश जी, ये जो आप बता रहे हैं कि उसके अंदर जो उपज नए नए तरीके से करना, वो तालीम की बात है क्या? कि उपज मतलब वो नेचुरली इंसान पिछले जन्म से लेके आता है? आज कोई पूछ रहे हैं? अच्छा, उपज ऐसा है कि मैंने किताब में लिखा है, उपज और उपज अंग, इसके बारे में लिखा है जी। और लेकिन अभी आप जो नॉर्मल उपज कहते हैं उसी की मैं बात करता हूँ। उपज सिखाई नहीं जाती है मगर संस्कार किए जाते हैं। क्या किया जाती है? सॉरी, संस्कार किए जाते हैं और वो तालीम में दिए जाते हैं। तालीम का मुझे जो अर्थ ये मालूम है कि ताल में जो विद्या दी जाती है, ताल में इलम मतलब विद्या जो दी जाती है उसको, उसकी तालीम दी जाती है, संस्कार किए जाते हैं। गुरु बजाता है और उसी के नकल करो, फॉलो करो। फिर जो गुरु ने क्या बजाया गुरु को भी मालूम नहीं, फिर अगर बजाने के लिए कहेंगे तो वो नहीं आता है, लेकिन करते करते वो चीज़ आ जाती है तालीम देने से। और ये सारी चीज़ें मैं सिखाना नहीं कहता हूँ, सिखाना तो वैसे बहुत स्थूल है, सिखाना तो आसान भी है, लेकिन संस्कार ये जो है बहुत सूक्ष्म होते हैं और संस्कार दिए जाते हैं। एक जमाने में माइंडकर जी आते थे, धाते टगे ना धाते टे धागे धीना गिना तेटे धाते टगे ना, ऐसे उपज करते थे। पता नहीं आजकल उपज वो हम मिस कर रहे हैं, बहुत साल हो गए माइंडकर जी से, लेकिन वो हमने टाइम देखा है माइंडकर जी का भी। धाते टथे टगे ना धाते टे धागा थी ना धागा दीना धाते टगे ना धाते टे धागा दीना गिना तेटे धाते टगे ना धाते टे धागा दीना धागा दीना धाते टगे ना धाते टे धागा थी ना गिना ताता ताते टके न ताते टे तागा तीना ताते टके न ते टके न ताते टे तागा तीना कर धाते टके न धाते टे धागा दीना ताते टके ताते टे धागा दीना गिना। हाँ, क्या बात है। अब चलते, मैं चल रहा धा तीन तीन, इन्हीं का कायदा है। तागा देने के धा धाते टके न धाते टे धागा देना गिना ते धाते टके न धाते टे धागा देना गिना धाते टके न धाते टे धागा देना धाते टके न धाते टे धागा देना गिना ताते टके न धाते टे धागा देना ताते टके न धाते टे धागा देना कर धाते टके न धाते टे धागा देना धाते टके न धागा देना गिना धाते टके न धागा देना ते टके न धाते टे धागा देना धाते टके न धागा देना धागे न देना गिना धाते टके न धाते टे धागा देना गिना
तिटकिन ताकतिन तातिटकिन तातिटकिन ताकतिन गिन धातिटकिन धाकतिन धाकतिन तिटकिन धातिटकिन धातिट धाकतिन गिन धा। क्या बात है, क्या बात। तो अभी मतलब ये कायदा अभी किसी भी ताल में आप बताएंगे तो ये उस ताल में ही ऐसे ही चलूंगा, क्योंकि ये उपज के लिए पहली प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, तो ताल का छंद होना आवश्यक है। अरविंद जी, ताल का छंद होना आवश्यक है। यही तो छंद होना मतलब क्या? छंद होना मतलब ताल की मात्रा गिनने की आवश्यकता न लगे। छंद से पता लगे, हाँ सही। हाँ, मतलब ताल की मात्रा गिनने की जरूरत न पड़े तो छंद बन गए। यही तो ताल कहते हैं। जैसे कि हमारा फिल्म म्यूजिक दादरा और केरवे पे ही चल रहा है, 50 साल हो गए। वो शादी में बाराती में बैंड बजाते हैं, लोग नाचते हैं। वो नाचने वालों को अगर पूछेंगे कि कौन से ताल में नाच रहे हो क्योंकि दादरा केरवा गिनने के पहले ही सम पे आते आते। क्या कहना। लेकिन जो छंद ताल है वही दादरा केरवा, वही 3 ताल का छंद होना चाहिए, वही जपताल का होना चाहिए, वही तिलवाड़े का झुमरे का सब होना चाहिए। यही तो है, पर्पज है। अगर ताल का छंद होना है तो राग का क्या होना है, ये अपने आप मैं पूछता हूँ। फिर उससे निकलता है कि राग की धुन होनी चाहिए। क्या बात। फिर राग खोकर हो, बेहागड़ा हो, कितना भी अनमट हो, अगर राग की धुन नहीं, कैसे ऊपर जाना, कैसे नीचे आना, कैसे यहाँ जाना वहाँ जाना, ये अगर बने नहीं तो राग गाएंगे क्या? फिर कंप्यूटर वाली चीज हो जाएगी सब, कैलकुलेशन वाली चीज। जैसे लय ताल का होता है वैसे ही राग का हो जाएगा। सही बात है, और ज्यादा तो हो भी रहा है। धुन होनी चाहिए, राग की धुन बहुत जरूरी है। ताल का छंद और राग की धुन ये फाइनल पॉइंट है ही नहीं। ये संगीत की शुरुआत यहां से होती है, फाइनल पॉइंट नहीं है। क्योंकि राग का छंद, ताल का छंद हो गया, राग की धुन हो गई, तो हमारे गुरुजी कहते थे चलो अभी शुरू करो गाना। आजकल अच्छे तानपुरे मिलाते तो लोग इतने दाद देते हैं। हमारे टाइम में तो कभी अच्छे तानपुरे मिलाने के बाद गजानन राव जी कहते थे कि बस बहुत अच्छे, चलो अभी शुरू करो गाना। मतलब दाद वगैरह कुछ नहीं, इतना तो आना ही चाहिए। कुमार जी कहते थे अपने स्टूडेंट को, तानपुरे मिलने के बाद ही मैं आ जाऊंगा अंदर, नहीं तो आऊंगा नहीं। तो ये पेशेंस, अभी ये पेशेंस भी चला गया है शागिर्दों का। शागिर्द, हाँ, मुंह कालाप हो गया था। मुंह कालाप हो गया। अच्छा, एक और सवाल था अबाउट रियाज। कई लोग पूछ रहे हैं जैसे यूट्यूब में भी कि रियाज कैसे करना, वो जरा समझाइए। तो मैंने कहा तबले का भाई सूरज जी को पूछना नहीं, पड़ेगा। अपना अपना एक प्रिंसिपल होता है। हर एक लोगों ने अपना अपना रियाज किया है। मेरा मैं बताता हूँ, मैंने बहुत लोगों से नज़दीक सहवास करके बहुत कुछ सीख पाया है। एक दिन मतलब हमारी शादी के पहले मैं मोगू भाई कुर्डीकर जी के पास जाता था, और ये सारे लोगों के पास जाता था मैं, ठेके लगाने, सुनने। तो एक बार मोगू भाई कुर्डीकर अपने शागिर्दों को कह रही थी, अब बिहागड़ा, हाँ, प्यारी पग ओले की बंदिश 3 आवर्तन की बंदिश है। हाँ, विलंबित 3 आवर्तन की बंदिश। और उनकी डिसिप्लिन और ऐसी कड़क थी। अच्छा, बोले इस शब्द पे तुमने सांस ली कैसे? वो शब्द है, वो 2 शब्द के बीच में सांस लेने की जगह रखी है, वहीं सांस लेना चाहिए। ऐसे कड़क स्थिति में वो अस्थायी अंतरा बराबर आने तक कितने बार कहने का मैं बताऊंगी नहीं, वो कहती थी। लेकिन बराबर आने के बाद 108 बार कहने का।
तो ये एक रियाज का है। अगर अस्थाई अंतरा 108 बार बराबर आने के बाद कहने का, और 108 में एक बार गलती हो गई तो फिर से 108। 108। तो ये प्रिंसिपल मैंने ले लिया है। आज भी मेरे आश्रम में मैं बैठा हूँ तो शागिर्दों से 108 आवर्तन तो कम से कम सुबह 8-10 बार होते हैं, अलग अलग फ्रेजेस के 108 आवर्तन हो जाते हैं। और वो 108 आवर्तन में अब रियाज की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये सवाल जो है। एक तो बोल सही बजने चाहिए, उसका तंत्र जो है वो सही, जो अपना अपना होता है, अपने अपने हिसाब से हर एक का अलग अलग होता है। वो सही बजने चाहिए, मगर जिस लय में, कौन सी लय में बजानी चाहिए रियाज, तो जिसमें सांस बढ़ेगी नहीं वो लय में बजाना चाहिए। वो लय में बजाना चाहिए। अगर सांस बढ़ रही है बढ़ रहा है तो गलत है, क्योंकि हाथ थकने के पहले हम ही थक रहे हैं, तो फायदा क्या है। और ये प्रिंसिपल मेरे पास कथक के लोग भी लय ताल की शिक्षा लेने आते हैं, तो मैं उनको भी यही कहता हूं कि पांव थकने के पहले तुम थकना नहीं चाहिए, सीने से नहीं थकना चाहिए। तक अधिक ताके 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 तक अधिक ताके ताके ताके। तेरे को का सब एक दिन इचलकरंजी में कह रहे थे अपने चाचा के लिए, उन्होंने कैसे रियाज करवाया उनसे। वो कोठियों पे सारंगी बजाने जाते थे और कहते थे मैं आने तक सुबह तक बोले इसी लय में बजाते रहो, धा तेरे खिड़ने का धीरे धीरे खिड़ने का धा तेरी खिड़ने का तीन आग, जो भी कुछ है इसी लय में बजाते रहो। और जब आ गए तो दादर कृतक तीना कृतक ये बजा रहे थे, तो इतना लकड़ी से पीटा उन्होंने। बोले खबरदार, तुमने कैसे डिसाइड किया, तुमने तय नहीं करना चाहिए, तुम्हारे उंगलियों ने तय करना चाहिए। सही सही बात है। यही शांता प्रसाद जी ने कहे थे शब्द रियाज के बारे में। बोले खुद मत डिसाइड करो ऊपर जाने का, उंगली बताएगी तुमको ऊपर जाना है रियाज। तो रियाज के ये प्रिंसिपल है, लेकिन टोटल रियाज के ऊपर भी मैंने एक चैप्टर लिखा है मेरे किताब में, जिसमें कहा है कि रियाज का मतलब ज्यादातर लोग तंत्र के लिए लेते हैं, टेक्निक के लिए लेते हैं, बराबर। सितार का हो, तबले का हो, पकाव का हो, टेक्निक के लिए लेते नहीं। मेरा अलग है, बुद्धि का भी रियाज होना चाहिए, सोचना चाहिए। हाँ, अगर संगीत क्रिया शरीर बुद्धि मन ये तीनों स्थिति से अगर फल रही है तो ये तीनों का रियाज होना जरूरी है। सही बात है। नहीं तो बहुत हाथ पल्ले चलते हैं और तिहाई रूपक में सम से सम तक तिहाई कहना नहीं आता है। ये स्थिति है, बहुत अच्छे अच्छे तबला वादक है, अच्छी अच्छी विद्या है, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें तो गुरु को भी थोड़ा फॉल्ट है ना। लेकिन एक जरूरी चीज फंडामेंटल्स मुझे लगता है कि हम लोग रियाज, जैसे शरीर में चर्बी होती है तो चर्बी यहाँ भी होती है कि उनको धाते कहते ये कहना नहीं आता है, ये कटना नहीं आता है। बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है। और फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बोले लय तो कुदरती होती है, वो सिखाई नहीं जाती है। मैं सहमत नहीं हूं इससे। मैं सिखाता हूं और काफी हद तक करवाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कैसे सिखाना, और मालूम कब होता है, क्योंकि उसको क्यों नहीं आ रही है। ये सवाल अपने आप को 100 बार पूछते रहता हूं मैं
तब रास्ता निकल जाता है, तब रास्ता निकल जाता है और पता लगता है कि अरे ये करने से आएगी। बहुत बार ऐसे लगता है कि ये करने से इसको आएगी और नहीं आती है, फिर वापस सोचते रहते। और सच कहता हूँ अरविंद जी, झूठा नहीं कहता हूँ, सपने में भी रास्ते दिखाई दिए मुझे क्या बात, क्या कि ये करने से आएगी, और आता है। तभी तो आपको ताल योगी बोला है। अच्छा, आप लोगों में किसी को सवाल कुछ पूछना है तो बिफोर, एक आध दो सवाल मेरा बाकी है, लेकिन बिफोर दैट जितना डिस्कशन हुआ उसके बारे में कोई किसी को पूछना है तो द फ्लोर इज ओपन नाउ। आपने 3 स्थिति बताई, पहले नाम बताइए। केशव परंज पे। आपने 3 स्थिति बताई कि लयदार, लयकार और तालिया। तो लयदार के बारे में कुछ बताया गया, लयकार के बारे में भी कुछ बताया गया, लेकिन तालिया के बारे में कुछ बताया नहीं बताता गया हूँ अभी, और एक ही चीज तिहाई बताता हूँ, और वो तिहाई में लयदार तिहाई वही रहेगी, लेकिन लयदार अवस्था, लयकार अवस्था और तालिया अवस्था। क्योंकि मैं बिरजू महाराज जी ने मेरा लेक्चर रखा था और ये लयदार, लयकार, तालिया के बारे में मैं बात कर रहा था, तब महाराज जी ने कहा कि इसका एग्जाम्पल आप दीजिए सूर्य जी। तब की बात है, 3 तात कधिन दिन। श्याम श्याम पद बोए सोई, श्याम श्याम पद बोए। अब ये मैं बंदिश यूज करता हूँ, इससे मन भरता है, नहीं तो सिर्फ नगमे से ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वजन नहीं था। श्याम श्याम पद पावे सोई, श्याम श्याम पद पावे सोई श्याम। अब जरूरी नहीं सम पे पहले मात्रे पे आना है। श्याम श्याम पद पावे सोई श्याम, ये नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो कहने का अंदाज है वो ठेके की वजह से आ रहा है। पद पावे सोई श्याम श्याम पद पावे सोई, मन हरि सदा नित्य जय हो, मन हरि सदा नित्य जय हो, मन हरि सदा नित्य जय। हरि गुरु रत होई श्याम श्याम। तक ताती धा दिन दिन ना का दिन दिन ना। पहिली लयदार, आधी बंदिश म्हणतो, साधी ती आहे, धाते का ते दा दे का दे दा, धाते का ते दा, धाते का ते दा ते का दे दा, धाते का ते दा, धाते का ते दा ते का ते दा। हाँ, अब इसको लयदार अवस्था में कहना है तो लय की गति पहले कायम करनी चाहिए। अब इसमें कहना है धाते गते धा दे गते धाते गते धान धाते गते धा दे गते धाते गते धा धाते गते धा दे गते धाते गते धा। ह्याच्यात लयदार अवस्था गती कळते लयीची आणि ती स्थिर करीये, म्हणजे धाते गते धा दे गते धाते गते धान धाते गते धा दे गते धाते गते धा धाते गते धा ती गते धा। आता हीच लयदार अवस्था, सॉरी लयदार झाली, लयकार। लयकार म्हणजे काय, लयीला वेगवेगळे आकार द्यायचे, अलग अलग आकार देणे के। धादे कदे धा ते कते धान दादे कदे धा ते कते धान दादे कदे धा ते कते धादे कदे। वेगळी जाते माझ्याकडून, तीच परत म्हणतो,
धाधे का तिट धा दे का दे धा धाधे का तिट धा धाधे का तिट धा दे का दे धा धाधे का तिट धा धाधे का तिट धा दे का दे धा धा. ही लयकारी आहे. आणि आता तालिया तालिया जिसमें बंदिश में ताल दिखनी चाहिए. अब ताल के खंड के साथ धाधे का तिट धाते काते धाधे का तिट धा धाधे का तिट धाते काते धाधे का तिट धा धाधे का तिट धाते काते धा. आणि ही वेगवेगळी या लयीच्या 3 अवस्था आहेत. ता 3 5 तालाचे खंड बघा, म्हणजे त्या खंडाच्या जवळ कुठला शब्द येतोय तो बघा. तात कधे न कधे धाधे का तिट धाते काते धाधे का तिट धा धाधे का तिट धाते काते धाधे का तिट धा धाधे का तिट धा ती क. ज्याच्या तालाची जाण आहे, तालाची जाणीव आहे. मुद्दाम एकाच बंदिशीतून मी हे उदाहरण दिलं. फार म्हणजे तो हाँ हिंदी एक ही तिहाई में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जैसे तीन तीन ना दिन ना दिन ना तीन तीन ना, ता धरकड़ता दिन तगटता दिन धरकड़ता दिन धरकड़ता दिन दिन धरकड़ता दिन ताका दिन ताका दिन धरकड़ता देता ता देता ता देता दिन ताका देखता दिन तक देखता दिन ता धरकड़ता देता ता दी ता दी ता तधा तधा क्या बात. कृतक ताकता दे ता धरकड़ता तधा धा तधा धा तधा धा कृतक तधा धा तधा धा तधा तधा धा तधा धा तधा तधा धा अब ये झपताल में हमारे गुरुजी ने रूपक में झपताल सिखाया. कैसे देखिए, देना दे देना 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 दा 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 तद देना 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 दे देना 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 दे देना 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 दे देना दे देना 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 दी दी ना दी ना दी ना दे देना 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 दी दी ना दी ना दी ना दे देना 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 दी दी ना दी ना दी. क्या बात है. ये सूक्ष्म लय होती है, सूक्ष्म लय होती है. तो सूक्ष्म लयकारी जो होती है वो मुझे हमारे गुरुजी रामनाथ ईश्वरन जी से मिली. एक दिन मैं उनके घर बैठा था तो रविशंकर जी आए थे और इतनी बड़ी थाली लेके आए थे, सब नारियल वस्त्र पेड़ बर्फी सब, और उनको दे दिया उन्होंने. मतलब रविशंकर जी बहुत सीनियर थे उनसे उम्र में, लेकिन रविशंकर जी ने उनको ये किया तो मुझे कहा मुझे उन्होंने पूछा तुम यहाँ कैसे हो, तो मैंने कहा मैं सीखते हूँ. तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए, पीठ में एक जोर से लगाया, बोले ये चालू रखो, कभी बंद मत करना.
बहुत गुणी लोग हैं ये। सही बात है। सूरज जी थोड़ा सा सब्जेक्ट बदले। हाँ और तबले के अलग अलग घराने होते हैं, हाँ। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे कि? तबले में 6 घराने हैं जी जो बहुत अहमियत रखते हैं। एक तो दिल्ली, फिर दिल्ली से ही बनने वाली हजरारा करके एक ब्रांच है, उनका भी एक अच्छा स्टफ है। जी और फरुखाबाद है, फिर लखनऊ है, बनारस है और पंजाब है। ये घराने मैं बिल्कुल मन से मानता हूँ, इनके कंट्रीब्यूशन भी बहुत योगदान बड़ा है। लेकिन तबले का मूल फंडामेंटल जो घराना तबले का है वो है दिल्ली, उसको मैं, और तबले में दिल्ली घराना है ये कहने से तबले का दिल्ली घराना है ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि तबला साज निकला पहले तो उसने पहले तो दिल्ली घराना को देखा। खासियत तो बता सकते हैं आप? अलग अलग ये 5-6 घराने जो बताए उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स कुछ? नहीं, खासियत है जैसे पेशकार और कायदा, ये दिल्ली की खासियत है। यही खासियत अजरड़े की है, लेकिन पेशकार की जगह कायदे की है। और कायदे के विस्तार में एक अलग, जैसे हबीबुद्दीन खां साहब थे अजरड़ा के, जी उनकी विस्तार क्रिया पे बहुत अच्छा। कंट्रोल था और उनके जैसे विस्तार करने वाले बहुत कम लोग थे। किनार का बाज और शाही का बाज वगैरह? नहीं, वैसे बाज तो 2 ही है, लव का बाज और किनार का बाज। किनार का बाज तो 2 ही है, जिसको हम दिल्ली बाज और पूरब बाज भी कहते हैं। जी तो किनार और लव का बाज ये कह सकते हैं। लेकिन ये 6 घराने हैं। लेकिन टोटल गाने बजाने में मुझे घराने के बारे में मैं सोचता हूँ, सिर्फ तबला नहीं, जी हाँ। तो मुझे लगता है कि घराने पहले साहित्य, घरानों का अपना साहित्य, उसका तंत्र और उसका प्रेजेंटेशन, ये 3 चीज़ों से घराने बनते हैं। अलग अलग हाँ। हाँ, एक साहित्य मतलब उस घराने के बंदिशों की बात है। फिर उसका निकास, जो तंत्र, टेक्निक, और उसका खास एक प्रेजेंटेशन, उसका, ये घराने का, वो तो व्यक्तिगत भी होता है प्रेजेंटेशन, लेकिन ओवरऑल घराने में बहुत कुछ बताया गया है कि ये इसको जी। इस तरह कहना। और घराने के साथ नज़दीक का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है शैली। तो शैली के बारे में मुझे लगता है कि घराने ये तो मूल्य सापेक्ष होते हैं और शैली व्यक्ति सापेक्ष होती है। अच्छा शैली में कलाकार दिखता है, घरानों में शिस्त, डिसिप्लिन दिखती है और मूल्य दिखते हैं। और पर्सनली मैं जितना घरानों को मानता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन वहाँ तक मैं सीमित नहीं समझता हूँ, क्योंकि कला बाहर आने के लिए वो शैली आनी चाहिए उस कलाकार की खुद की, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, वो तो जैसे आपके गुरुजी भी, उन्होंने उसी घराने में रहकर अपनी एक शैली विकसित की, वही बात मुझे लगता है। वही तिरकवा का सब ने किया अपना अपना तबले में। जी जी बिल्कुल। और कोई किसी को सवाल? कोई? हाँ हाँ हाँ, नाम बोल देंगे आप प्लीज। मुकुंद आठवले। लय का ज़्यादा प्रयोग करने से कला की स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है आपका? बिल्कुल नहीं। देखिए, लयकारी कितनी करनी चाहिए, जितनी मर्जी है उतनी करो, कितनी विकट करनी है उतनी करो ना, जितनी मुश्किलात करनी है, लेकिन खुद की स्थिति मुश्किल वाली नहीं होनी चाहिए।
हाँ, उसके अपने अपने कलाकार की तबीयत रहती है ना, कोई करेंगे कोई नहीं करेंगे, उससे उसके कला पे क्या कितना असर होगा ऐसा मुझे खास नहीं लगता है। आज भी यहाँ मैं जल्दी पहुँच गया था, तो हमारे भाई गायतोंडे जी की मैं वीडियो सुन रहा था, तो इतना अच्छा लग रहा था। सब पुराने लोगों की याद, तिरकवा का साहब की, अमीर हुसैन का साहब की, वो सुनकर बहुत आनंद ले रहा था मैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लयकारी करनी ही चाहिए, कुछ लोगों का होता है, तुम जो कह रहे हो वो होता है, क्योंकि वो हजम नहीं हुई होती है। अभी जैसे कि एक बंदिश मैं कहता हूं और उसमें थोड़ी उपज की क्रिया देखता हूं। देखिए, सोनी चलो अब तो किया चलो हटो पिया बने गनया, चलो हटो पिया बने गनया, चलो हटो पिया बने गनया, चलो हटो पिया अपने करे आवो, चलो हटो पिया बनी गनया, चलो हटो पिया। मैं इनको पूछ रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने ये बंदिश कही है क्या? तो कहता चलो हटो पिया बनी गनया, चलो हटो पिया बनी गनया, जुड़ी भजन हमें यूं ना सुनावो, चलो हटो पिया बनी गनया, चलो हटो पिया चलो हटो पिया। अब कोई तय नहीं है। चलो हटो पिया बनी गनया, चलो चलो हटो बनी गनया, चलो। कितना भी अपनी मर्जी से मुश्किल काम करिए ना, लेकिन ये अच्छा लग रहा है या नहीं बताइए। हाँ, तो इसको कह नहीं सकते मुश्किल करके, और इससे म्यूजिक खत्म होता है ऐसा नहीं है। चलो बनी गनया, चलो पिया। अब हाँ, एक देखिए पावना का दम है, मुश्किल बंदिश देखिए। देता देता देते धात देता घेक देता धादा अंदा तक देता घेक देता धादा अंदा तक देता घेक देता धादा अंदा न दे देता दे देता देते धात देता घेक देता धादा अंदा तक देता घेक देता धादा अंदा तक देता घेक देता धादा अंदा न दे देता दे देता देते धात देता घेक देता धादा धात देता घेक देता धादा धात देता घेक देता धादा। मुश्किल है, अलग अलग दम का है, मगर वो अगर कंट्रोल हो और उसमें जिसमें खूबसूरती कायम रहे, उसका भी एक तो, और खूबसूरती कायम रखने की बात एंड में होती है, उसके पहले अध्ययन होता है लय ताल का।
लय ताल का अध्ययन होता है। मुझे अल्लाह का कासा पूछते थे कि तालाध्ययन तुमने कहाँ से किया, ये हमेशा पूछते थे, क्योंकि उनका तो तालाध्ययन बहुत बड़ा था। तो मैंने उनको बताया कि हमारे गुरुजी खापरू जी से भी सीखे, नागेशकर गुरुजी खापरू मामा से भी सीखे, लय भास्कर खापरू जी से सीखे। तो वो एक शुरू में दिया हमको लेसन तरह तरह के। और हमारे गुरुजी ने पहले क्या लय का तालीम दिया वो मैं आज बताता हूँ। देखिए, अब ये विलंबित लय और बोले एक पट, डेढ़ पट, दो पट सब आनी चाहिए। हाँ, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा गे तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा गे दिन दिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा गे दिन दिन धा धा धिन धिन धा धा गे तिन तिन ता ता त्रक धिन धिन धा धा धिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता त्रक धिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता त्रक धिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता त्रक धिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता त्रक धिन दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता त्रक धिन दिन धा धा दिन दिन धा धा। इस तरह आठ पट तक। और ये शुरू में नहीं जमता था, तो जब जमने लगा तो उन्होंने कहा अभी ठेका क्या कर रहे, तो ठेके में जो एक हाथ ताल की बंदिश है उसका करके दिखाओ। और ऐसे करने की स्थिति में एक दिन उन्होंने कहा जाके नीचे जाओ और चाय बोल के आओ मेरे लिए। तो नीचे शंकर विलास का होटल था। अच्छा, हाँ, चाय बोलने गया। तो चाय बोलकर मैं वापिस आ रहा था, तो एकदम मुंह में तमाचा मार दिया किसी ने मेरे। फिर देखा तो एक बाजू में ट्राम थी, एक बाजू में बस थी और सामने से टैक्सी थी। उसमें मैं बीच में था। मैं डर गया, उससे डरा नहीं कि हम लोग बच गए इसलिए डरा नहीं। मैं डर गया कि ये अगर किसी ने देखा तो अगर बोलेंगे तो घर में मार पड़ेगी। और आखिर में वही हुआ, किसी ने बता दिया। इस चीज को मैं 10 साल के बाद 15 साल के बाद सोचने लगा कि ऐसे ऐसे अपने साथ हादसा हुआ था। तो मुझे आंसर मिला उसका कि अगर मैं ऐसी स्थिति में, लय ताल की स्थिति में चल पड़ूं तो फिक्र करनी नहीं चाहिए, उसकी फिक्र ऊपर वाले को होती है। सही सही बात है। ऐसा मुझे
उस टाइम में लगा, मतलब सही बात। आज गुरु सिखाते हैं तो आज गुरु क्या सिखाते हैं वो कभी मालूम ही नहीं पड़ता है, 10 साल के बाद ही मालूम पड़ता है कि गुरु ने क्या सिखाया। सही बात है। क्या आज कभी मालूम नहीं पड़ता है। मटेरियल मिल जाता है कि एक आधी ये कायदा दिया है गुरुजी ने, लेकिन वो सही क्या है कायदा, सही उसका कायदे का मतलब क्या है। और सही गुरु भी तो होना चाहिए। हाँ, और वो 10-15 साल अगर रियाज हो गया है, साधना हो गई तो ही पता लगता है, नहीं तो नहीं। क्या बात है। गुरु भी ऐसा चाहिए, शिष्य भी ऐसा चाहिए। हाँ, हमारे पारिक साहब कहते हैं कि शागिर्द में क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो सरेंडर, डिवोशन, हार्डशिप, सिंसियरिटी, Loyalty. पंक्चुअलिटी और लॉयल्टी। ये आप ही की बात में सब जगह मेरे किताब में भी मैंने जिक्र किया है इसका। और इसमें इंटेलिजेंट बात में मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि आजकल इंटेलिजेंट लोग आते तो डर पहले मुझे लगता है क्योंकि वो रियाज से दूर जाएगा। ये थोड़ा कम दिमाग वाला हो ना, लेकिन सिंसियरिटी हो, सिंसियर हो तो फल देगा। ऐसा आत्मविश्वास अंदर से, ये ना मूर्ख चाहिए ही, ऐसा मुझे भी नहीं चाहिए कहना है। नहीं, दिमाग वाला भी सिंसियर हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर काफी हमारे शागिर्द बैठे हुए हैं यहाँ, सब सुने तो अच्छा है। लेकिन गुरु कैसे होना चाहिए, आता है ना 5 है ना। गुरु के लिए? प्लीज बताइए, मुझे तो 3 ही मालूम थे। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद विज्ञान होना चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी, वो ज्ञान को एनालाइज करने के लिए चाहिए। हाँ, और तीसरा चाहिए वचन, आर्टिकुलेशन होना चाहिए, बोलने का, समझाने का। चौथा प्रयोग सिद्धि, प्रयोग डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहिए। और लास्टली विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिष्य निष्पादन, शिष्य को बनाना है। ये गुरु का 5 शिक्षा। बिल्कुल। उसमें से मैं 3 ही ज्ञान, कहता हूँ। ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रयोग सिद्धि और शिष्य निष्पादन। नॉलेज, हाउ टू टीच एंड विलिंग टू टीच। विलिंग टू विलिंग टू टीच भी बहुत है, क्योंकि अपनी सिखाने की इच्छा ही नहीं हो तो फिर फायदा क्या है, ज्ञान कितना भी हो। तो फिर शागिर्द को किया। नहीं, बहुत सारे गुरु ऐसे भी होते हैं। लेकिन सुरेश जी देखो, सच्ची तो बात है कि हर गली में गुरु नहीं मिलता है। हाँ, वो तो है। हमको एक जमाने की बात है, बहुत उस्ताद थे। अरे अपने तो परसों मेरे सामने आपको जाकिर भाई क्या कह रहे थे, मुझे याद है, सुबह का वक्त था, 29 तारीख मई की। हाँ, मुझे पता है क्या कह रहे थे, कि आपने गुरु की सही सेवा की है जितने हम लोगों ने भी नहीं की है, नहीं नहीं, और आपने पाई है वो सेवा करके। मेरे सामने तो जाकिर भाई कह रहे थे आपको। नहीं, वो तो मैंने अभी बैठते बैठे आपको भी आपके तबीयत का राज बताया। आप इतने लड़कों को सिखा रहे इसलिए आपकी तबीयत बहुत अच्छी है। बिल्कुल, वो तो नहीं। देखिए, हमारे उस्ताद ने हमको 60 साल सिखाया, तो इट इज़ माय ड्यूटी टू, वो विलायत खानी जो हमने परिवार बनाया है, विलायत खानी, उसको चालू रहे, वही हम कोशिश कर रहे हैं। आपने कल्चर, सितार कल्चर को कायम रखा है बम्बई में, नहीं तो ये तो सितार सरोद कल्चर तो बंगाल में है। सही बात है। हाँ, सही बात है। बंगाल में है कल्चर सितार सरोद का। राइट। लेकिन आज तो दिन सुरेश जी का है। थोड़ी सी मैं एक बात करता हूँ जी, जी। इससे पैरेलल, जी जी। और अपने नहीं करना चाहता हूँ, अच्छा। लेकिन एक जमाने में तंतु वाद्य की साथ संगत करने के लिए कलकत्ते से तबला वादक यहाँ आते थे। अभी यहाँ से तबला वादक कलकत्ते जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत करने। ये तो एक टाइम की बात होती है।
नहीं, मेरा कहने का ये था कि आज सूरज जी यू हैव एक्सेल्ड योर सेल्फ, बहुत अच्छा लगा। मेरा ख्याल है सब लोग मेरे साथ बैठक के बारे में कहना चाहता हूँ। जी बैठक के बारे में जरा बोलिए, ज़रूर चलेगा? ज़रूर ज़रूर। क्यों, बैठक का पर्पस क्या है? क्योंकि बैठक मैं भी कर रहा हूँ, आप देख रहे कल हमारे यहाँ 10वीं बैठक हो गई। हर महीने सितंबर में शुरू किए, कल हो गई। अगली बैठक 13 तारीख को है। आजकल मेगा इवेंट हो रहे, आर्टिस्ट बैठा है लाइट में, ऑडियंस में कोई किसी की शक्ल देख नहीं पाता है, कलाकार। हाँ, और ऑडियंस कलाकार को देख सकता है, लेकिन दाद ऑडियंस के पहुंच नहीं पाती है कलाकार तक, यह समस्या है। तो दाद का माध्यम क्लैप, इतना ही है। सही बात है। अब कलाकार को क्लैप मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए मुझे नहीं कहना है, क्लैप नहीं मिलनी चाहिए ऐसा मुझे नहीं कहना है, मगर सारे आविष्कार संगीत के जो होते हैं वो क्लैप के लायक होते हैं क्या? दरबारी का गंधार लगाएंगे तो क्लैप कोई बजाएगा क्या? कोई बजाएगा नहीं। इवन तबले के तीन तीन ता तो दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन। अब देखिए इसमें क्लैप आएगी क्या, बताइए? धे धे धाकट धे ताकट दाकट दिंगड़ा धाकट धुंगट धरा दंडगत कृत दाकट दिंगड़ा धाकट दिंगड़ा दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना। इसमें क्लैप कैसे देंगे आप? आहा कहेंगे अनागत लगने के बाद। दाद देना चाहिए। हाँ आहा ये कहेंगे ताज के दिन दिन दा धीक धीक दिन दिन ना ना। एक दो चार पुराने अनागत कहता हूँ। धीक धीक तक 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 धर तक दा गजिंदा तक दा धरिका तक दा। ये जो बंदिश है इसको अलग अलग लोग कैसे कहते थे, तिरपा का सब कहते थे। देख देख तक 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 दा गंदा तक दा धरे गत्ते दा तक 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 दा तक गिना के दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना। वो जगन्नाथ बुआ पुरोहित जो गायक थे, बहुत अच्छे तबला वादक थे, तो वो इस चीज को कैसे कहते थे? देख देख तक 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 धा देख तक 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 धरे कत्ते दा तक 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 न धा कह दा धा देना 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 तक देना देना देन देना देना देन दे देख देख तक 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 धा देख तक तक दिन तक धरे कत्ते दा तक 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 न धा कह दा धा देना तक देना देन देना देन देना। क्या बात है। हमारे निवृत्ति बुआ जी गुरुजी वो कैसा कहते थे इसको देखिए। देख देख तक 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 धरकता गंदा करता धरका तकता तक दे तक न दा दिन आके दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना। तो ये कोई क्लैप कोई दे ही नहीं सकता है। तो ऐसे सारे आविष्कार जो है वो फिर से आ जाए संगीत में, ये लुप्त होते जा रहे हैं, ये लुप्त होते जा रहे हैं। हमको दरबारी का गंधार लगा तो ये बात होती है। दाद देना। हाँ वही तो हाँ। सूरज जी एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है। हाँ। सूरत में बहुत ज़माना पहले प्रोग्राम में इंडियन बैठक थी, आगे एक कालीन था, कालीन पे कोई बैठता नहीं था, अलग अलग जगह लोग बैठते हैं। थोड़ी देर के बाद 4-5 लोग आके वो कालीन पे बैठे। मैंने इंटरव्यू में पूछा कि ये कालीन की क्या बात है? बोले आपको नहीं मालूम, वाहवा मंडली का मेंबरशिप है वो।
वहाँ वहाँ मंडली है, उसके मेंबर बनना पड़ता है, जब उधर कॉलेज पे सामने बैठ करके दाद दे सकता है। इसका विरुद्ध किस्सा बताता हूं मैं, अपोजिट। तबले का काम ही वो है ना। नहीं देखिए, थिरकवाका साहब आ गए, पहले बैठ गए, बाद में तबले आ गए, फिर उन्होंने गद्दी निकाली तो कोई कह रहा है कि हाँ हाँ सुभान अल्लाह, क्या कहने। तो थिरकवाका साहब ने ऐसे देखा, बाद में मिलाना शुरू किया, आया आया क्या कहने। अब कर शुरू किया तो उसकी धात तो बढ़ती जा रही है। हाँ, इतनी बढ़ती जा रही है। थिरकवाका साहब रुक गए, बोले ये हरामजादे को पहले बाहर निकालो। इसको बाहर निकालो, मैं बोले सत्यानाश करने वाला है ये फिर। तो मतलब एक उसमें दाद देने में भी, मैं दाद के बारे में एक और किस्सा बताता हूँ, जिसका मैंने मेरे किताब में जिक्र किया है। हाँ, बहुत बार ऐसे होते बैठक में, बहुत मुश्किल कभी काम करते हैं, तो एक जानकार ऐसी दाद देता है, बाकी कोई देते नहीं। तो जो कलाकार काम करता है उसको समझ में आता है, साहब ये मेरे सब्जेक्ट को पकड़ लिया इसने। हाँ, पकड़ लिया, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि इसने पकड़ लिया है, वो कहाँ तक पकड़ लिया है, क्योंकि उसकी दाद में करेक्ट जगह उसने जो दाद दी है, वो दाद में वो कलाकार क्योंकि है, इतना समझ गए कि वो कलाकार ही दे सकता है सीधा। लेकिन वो दाद इतनी ओवर कॉन्फिडेंस थी कि वो दाद ही इसको खत्म करने वाली है, ये भी कलाकार समझ गए। वो दाद भी इतनी ओवर थी कि वो समझ गए, लेकिन जितना समझकर क्वाइट रहना चाहिए उससे कहीं वो खुल रहा था ज्यादा, समझ ओवर हो रहा था। हाँ, तो वो दाद देने से इतने कलाकार लोगों को समझ में आता है कि ये दाद दे रहा है, मगर कितनी लेवल तक इसकी लेवल है, दाद देने वाले की लेवल कहाँ तक है। फैयाज खान साहब बड़ौदा में सहस्रबुद्धे करके एक थे, बोले बम्बन को बोला मेरे सामने बिठाओ, दाद ठीक देता है वो। अपने दत्तोपंत ना, आपके मित्र दत्तोपंत सहस्रबुद्धे ना, उनकी बात कर रहे हैं ना, गोरेगांव में रहते थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग गए तो उनके घर 2-3 बार। तो मतलब ये भी जब कलाकार अपनी साधना करता है तो साधना में सबकी शक्ल उसकी समझ में आती है, और किसकी अहमियत कहाँ तक है बिल्कुल समझ में आता है। और मतलब थिरकवाका साहब एक बार कहते थे, हरामजादे ये बोले दाद दे रहा है, चुप। मतलब दाद देने का भी हक नहीं। और उन्होंने अपना ही किस्सा बताया। थिरकवाका साहब जब नथुका साहब के लिए सुनते थे तो ऊपर आंखें करके देखा नहीं उन्होंने, ऐसे सुभान अल्लाह खा साहब, ऐसे कभी ऊपर करके देखा भी नहीं उन्होंने। तो एक बड़े लोगों के लिए जो एक इज्जत होती है वो दाद में मालूम पड़ती है या नहीं, उसमें सही। दाद देने में मालूम पड़ता है, उसका मीटर मालूम पड़ता है। तो बैठक में ज्यादातर बहुत अच्छी जगह दाद देते हैं तो गाना बजाना एक अलग रूट में चला जाता है। ऐसा गाना बजाना पहले चलता था कि किसी ने दाद दी तो उस तरफ गाना बजाना हो रहा है, आजकल वो हो नहीं रहा है। ऐसे गाने वाले भी नहीं, बजाने वाले भी नहीं, और सुनने वाले भी नहीं है। ये तो सिचुएशन इज गोइंग इन अ डिफरेंट वे। तो मैं
मेरा लास्ट सवाल वही था कि आपको फ्यूचर नहीं, क्या बैठक होना चाहिए, बैठक बहुत आवश्यक है, मैं मानता हूँ, बहुत आवश्यक नहीं, मानता हूँ। दूसरी बात क्या है कि जो बैठक अभी करीब 12-15 हज़ार वो सब्सक्राइबर्स है अपने बैठक का, और उसमें हमको वही बोल के बड़े बड़े कलाकारों का हमने नाम ही सुना है, लेकिन अभी उनके साथ बातचीत में उनका कैसे सीखा इन्होंने, कैसे तकलीफ़ें कही वगैरह वगैरह, वो जो क्लैरिटी जो दुनिया में जो अलग अलग लोग होते हैं, और इवन इन इंडिया सब छोटे छोटे शहरों में पीपल डू नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी। अभी जैसे आज आपने इतनी इतनी ज्ञान वाली सब बातें कही, प्रैक्टिकल बातें कही, कई वेरी सटल बातें कही, वो सब कहाँ सुनने को मिलेगा लोगों को? आप एवरीवेयर यू डोंट गो योरसेल्फ। अभी यूट्यूब एक ऐसा टेक्निकली फैसिलिटी मिल गई है कि एवरीबडी होल वर्ल्ड आर लिसनिंग टू। एक सेकंड। तो प्रोग्राम के बाद ये बैठक की जिक्र वहाँ लोग कर रहे थे, अच्छा, तो ये दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। बिल्कुल, आप जो सही कह रहे हैं कि बैठक होना ही चाहिए, बैठक होना ही चाहिए। क्योंकि वहाँ जो डिनर पे कुछ लोग मिले मुझे प्रोग्राम के बाद, तो मैं आई वाज आल्सो सरप्राइज कि बोले हम हर एपिसोड देखते ही रहते हैं। और दूसरा क्या है कि इट इज़ अ परमानेंट देयर, कभी भी देख सकते हैं ना, कभी भी। एकदम। हाँ, ऐसा नहीं कि आज मिस किया। आपने भी पूरे यूट्यूब पे डाले हैं 9 के 10 के 10। बहुत बढ़िया। कल ये गाए बैठक में हमारे यहाँ, और इसके पहले वो हमारे एक शागिर्द है जो BHU में प्रोफेसर है, उनके लड़के ने बजाया, श्रुतिशील तबला बजाया। एक तबला परकशन रहता है किसी का, और बाद में गाना या इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा। अच्छा, एक सवाल जो मुझे पर्सनली लगता है कि इसके ऊपर आप जैसे अधिकार व्यक्ति कुछ बोल सकते हैं। कई बार आजकल में वन थिंग ऑफ कोर्स आई कैन से कि जितने इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें आज तबला ये सबसे बड़ी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, तंतु वाद्य हो जो भी है जिसमें भी है। लेकिन कहीं जगह पर्टिकुलरली मैं नाम लेके बोलता हूँ कि बंगाल में या बंगाल के तबला प्लेयर्स जो होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ में बैठते हैं, लेकिन जो मैं जाकिर भाई जैसे आर्टिस्ट भी कहते हैं कि जब कलाकार को संगत करनी होती है तो राइट एंगल में होना चाहिए बाय एंड लार्ज। आपकी पर्सनल क्या मैं है? सहमत हूँ इसी चीज से। मैं उल्लास जी के साथ कैसे बैठता नहीं, आप लोगों की तो बात ही नहीं है, आप तो बहुत ही, लेकिन इसका कोई आप जैसे नहीं, इसका प्रिंसिपल है। नहीं, वो तो बिकॉज मेन आर्टिस्ट के साथ जब नहीं, तक पहले आप तो उनके साथ बजा रहे हैं, हाँ, तो उनका म्यूजिक पहले समझने की कोशिश करिए, उनकी नज़र में नज़र डालिए। ऐसा देखेंगे तो ऐसी नज़र कितनी मिला सकते हैं। लेकिन ये आजकल बहुत बढ़ रहा है, और ये महाराष्ट्र में भी आ रहा है तबला प्लेयर्स के साथ। ये मुझे बड़ी अजीब लगती है, और तबला प्लेयर्स को ऑफेंसिव लगता है अगर उनको बोले कि नहीं आप इस तरह। पंडित जी, आप मानते हैं ये बात को सही है कि नहीं? मुझे मगर मंजूर नहीं है। नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ। ऐसे ही बैठना चाहिए। मेरे शागिर्द सब ऐसे बैठते हैं, मगर बराबर है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपके बहुत शागिर्द मेरे साथ बजाते हैं, तुम पता है मुझे। अरे विजय घाटे भी ऐसा भी बैठते हैं, बराबर है या नहीं? बिल्कुल सही है। अब विजय घाटे बैठते हैं तो बाकी के तो बैठेंगे ही। सुरेश जी, और जब आलाप चलता है तो मुंह बना के नहीं बैठना चाहिए तबले वाले को। नहीं, मतलब वो कोई उसमें- मजा ही लेते नहीं। नहीं, उसको मजा लेना चाहिए, उसको दाद देना चाहिए। बिल्कुल, दाद में कहता हूँ पहले अंदर घुसना तो चाहिए, और अंदर घुसने की उसके खुद की तैयारी नहीं है। क्योंकि अभी तो कभी कभी मुझे क्या लगता है कि आप दाद देनी चाहिए कह रहे हैं ना, मुझे सब लोगों का म्यूजिक दाद देने लायक होता है क्या? नहीं, तो फिरियाद तो होनी चाहिए, दाद नहीं तो। दाद नहीं तो फिरियाद तो होनी चाहिए। गुड इवनिंग, अमोल कपाड़िया। एक सवाल आता है, जो तबला बोल जो हैं, जैसे आपने बताया तबला बोल में कुछ ऐसे बोल हैं जो पखावज में नहीं बज सकते। मृदंगम बोल हैं, घटम बोल हैं, तबला बोल हैं। मेरे गुरुजी तौफीक भाई ने जेम्बे बोल भी बनाए हैं, हमारे साथ शेयर किए हैं। मेरा सवाल ये है कि ये सारी बोल जो भाषाएं हैं
परकशन की पर्टिकुलरली, इसमें से सबसे प्राचीन कौन सी है? सबसे पखावज। पखावज। मृदंग सबसे प्रचलित कौन सी है? और लास्टली आपके मानने में सबसे प्रचंड कौन सी है, जहाँ मिनिमम कॉम्प्रोमाइज है, जहाँ मैक्सिमम बोल उसमें किए जा सकते हैं? तबले में ही, क्योंकि देखिए तबला ध्रुपद धमार से लेके लावणी तक संगत करता है। एक जमाने में लावणी के साथ भी तबला बजता था, अन्ना जोशी बजाते थे। लावणी के साथ तबला बजाते थे। तो तबला ये वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, तबला ध्रुपद धमार की संगत करता है उस्ताद आला रखा का साहब, पंडित किशन महाराज जी विद सियाराम तिवारी। सियाराम तिवारी जी के साथ किशन महाराज जी का ध्रुपद धमार ऐसा चलता था, मज़ा आता था। खादिम हुसैन का साहब के साथ अल्लाह रखा का साहब ऐसा बजाते धमार, कमाल। सब स्टूडेंट की तरफ से एक सिंपल पूछ, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड, सबसे इजी टू लर्न बोल कौन से हैं? किसके बोल हैं? किस इंस्ट्रूमेंट के बोल सब इजीएस्ट फॉर द स्टूडेंट्स? व्यक्तिगत है। थैंक यू। क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा, दूसरे के लिए आसान होगा। व्यक्तिगत है। हाँ, पूछो। फोन ले लो, ये ले माइक्रोफोन लो। क्या वो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो नाम भी बताना जरूरी है। नमस्ते, मैं भूपाल बंशीकर गुरुजी का शागिर्द हूँ। जितनी देर मैंने आपको सुना हूँ अभी और बहुत सालों से भी जानता हूँ, आपका गाने के ऊपर जो प्यार है वो मतलब त्याला मराठीत म्हणतात एकमेव अद्वितीय आपण म्हणतो। तुम्ही जे गाणं ऐकता तर नवीन तबला वादक किंवा सतार वादक या सगळ्यांनी गाणं शिकायला हवं, कसं शिकायला हवं? निदान तरी बंदिशी गुणगुणता आले पाहिजेत। हाँ, सॉरी बोलतो हिंदीमध्ये। मतलब हर एक तबला वादक को कम से कम एक राग के 4-4, 5-5 अस्थायी अंतरे मुखड़े तो आने चाहिए। हर एक राग के आने चाहिए, क्योंकि ये जब मैं गा रहा था शुरू में, तो राजू को मैंने कहा ठेका लगाओ, सॉरी राजू मतलब विजय घाटे, ठेका लगाओ। तो मुझे उस लय में गाना नहीं आ रहा था ठीक से। अरे इतनी लेकिन सब पे नहीं ठीक आना आता है। तब मुझे पता लगा कि मैं कितनी तकलीफ देता रहूँगा गायक लोगों को आज दिन तक। तो कैसे ठेका चाहिए, जब खुद गाने लगा ना तो पता लगा कि अरे कैसे ठेका देना चाहिए। क्योंकि आपके ठेके में गाना ही सुनाई देता है। नहीं, वो तो मतलब खुद रियलाइज किया अंदर से उस चीज को कि कैसे ठेका लगाना चाहिए। मतलब अब आड़ा चौथा रहे अभी किया तो देखिए, नहीं तो मशीन की लय होती है ना, मैकेनिकल लय। ये मशीन की लय हो गए, लेकिन तेरे को कैसे लेट कर रहा हूं। और ये गुरुजी ने हमारे बताया, विनायक राव जी ऐसा आड़ा चौताल बजाते थे और वो ठेका तिरकिट को ऐसा लेट करते थे। वो लेट जो है वो पेशकार में मैं हमेशा
वो तिरकुट की लय को समझना है। कैसे धा कृदा तिटकिट धा दिन्ना, नहीं तो धा कृदा तिटकिट धा दिन्ना। ये कविता है, ये कविता है, कविता है। हाँ, और वो फिर ताल नाम की जो लय चल रही है उसके साथ मैच करना है उसको। तो हमारा गाना बजाना तबले का जो वो कविता की तरफ तबला जाना चाहिए, कविता की तरफ नहीं जाए। आपने सवाल पूछा था लयकारी करने से खत्म होता है, कि होता है, हो सकता है, क्योंकि वो कविता की तरफ नहीं जाता है। अगर कविता की तरफ जाता है तो अच्छी बात है ना। हाँ हाँ, प्रवीण करकरे, पढ़न के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपकी पढ़न मतलब लाजवाब, मतलब सिर्फ पढ़ते नहीं, आप गाते ही है वो तो। लेकिन वो पढ़न के बारे में कैसे आप मार्गदर्शन करेंगे, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, मेरे लिए? पढ़न के पहले लय ताल की साधना होनी चाहिए ये, फिर वो पढ़न ये 3 माध्यम से होनी चाहिए, लयदार, लयकार और तालिया। तो एक ही पढ़न के आपके 3 अलग अलग डायमेंशंस आपको दिखे पढ़न के। अगर ये दिखने लगेंगे 3 अलग अलग, तो फिर आप चूज करेंगे कि कहाँ तक लयकारी रखना, कहाँ तक लयदारी स्थित रखना, कहाँ तक तालिया का अंग दिखाना, ये है। उसके लिए पहले कटिंग जो है वो पहले समझनी चाहिए। पहले कोई भी लय ताल का अभ्यास कैसे होता है, उसकी 10 स्टेप्स है। पहले ये कौन से मात्रा में आती है ये मालूम होना चाहिए। फिर ओ बंदिश लय में कहना आना चाहिए। लय में कहने के बाद वो ताल में आनी चाहिए। ताल में आने के बाद फिर उसकी सुंदरता क्या है वो बाद में देखने की है, लेकिन ये उसकी प्राथमिक भूमिका है। और बराबर आना और सही आना, इसमें बहुत डिफरेंस है। और बराबर आना और समझ में आ गया, इसमें भी बहुत अंतर है। पहले समझ में आ गया लेकिन बराबर नहीं आ रहा है, फिर बराबर आ रहा है मगर सही नहीं आ रहा है, हिल रहा है। तो ये हर एक में 3-3 स्टेप्स है। ये इसका इस विषय में मेरा लेक्चर रखा था, पूना में हुआ था, इस सब्जेक्ट में लेक्चर दिया। तो 10 अवस्था है इसकी, टाइम टू टाइम मैं कभी इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन पहले कोई भी चीज सही तक पहुंचने के लिए इतना पेशेंस ही नहीं होता है। सही तक, सही पहुंचने तक बराबर आने आ गई ना तो सब कहते कि सही आ गई, ऐसे खुश होते। हाँ, तुम्हाला माहिती आहे इथे डोक्यावरती गोळी मारायची आहे असं तुम्ही आता नाही, मी ते ह्यांचं उदाहरण देतो, द्रोणाचार्यांचं महाभारतातलं। हां, ते सगळे विचारतात तुला काय दिसतंय तिकडे, हां, तर ते म्हणतात तो पक्षी दिसतोय, म्हणाल तू बाजूला हो। एकेकाला विचारतात तुला काय दिसतंय, म्हणाल तो पोपट बसलेला दिसतोय। हां, अर्जुनाला बोलवतात, त्या म्हणतात मला फक्त त्या पोपटाचा डोळाच दिसतोय। आता त्या पक्ष्याला मारणं आणि डोळ्याला मारणं हा अचूकपणा आहे, अचूकपणा आहे बरं का।
ज्या वेळेला काळोखात अर्जुन आणि कृष्ण जेवत असतात, हाँ, कृष्ण भगवान और अर्जुन अंधेरे में खाना खा रहे, तो कृष्ण भगवान पूछ रहे अर्जुन को कि तुम्हारा जो नेवाला जो है वो नाक में क्यों नहीं जाता है, मुंह में कैसे जाता है? तो अर्जुन कहता है कि वो डिस्टेंस की आदत हो गई है, हाँ, जो डिस्टेंस है उसकी आदत हो गई है। तो बोले यही तो मत्स्य भेद है, यही आदत होनी चाहिए तो मत्स्य भेद भी आराम से हो जाएगा तुम्हारा। अभ्यास की चीज अचूक सही, तुम्हाला वर्तुळ दिसलं, मग वर्तुळातला मधला बिंदू दिसला, पण बिंदूलाही परत वर्तुळ मानायचं आणि त्याचा परत बिंदू काढायचा, हेच बराबर आणि सही, हे अंतर आहे. तो हाँ, नमस्कार पंडित जी, मैं आबान मिस्त्री का शिष्य हूँ, आदर्श अवधानी. काफ़ी साल उनसे सीखता था, आबान मिस्त्री जी का. हाँ. तो फ़र्रुखाबाद से काफ़ी ताल्लुक़ रखता हूँ और फॉलो भी करता हूँ. हम में से बहुत लोग ना तबला गायन के साथ तो संगत चलो कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटल के साथ थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं साथ संगत का, और वो कभी कभी मैनेज भी हो जाता है. लेकिन डांस के वक्त जब बात आती है ना, तो हम लोग की मतलब स्वेटिंग शुरू हो जाती है बहुत लोगों की. तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे, इसके लिए इसका तोड़ क्या है? बता देता हूँ. डांस के पहले बंदिशें याद करो, फिर वो बंदिशें किस तरह बजाई जाएगी इसका किसी एक्सपर्ट आदमी से सीख लो, तो आदत हो जाएगी. समझ गए? दिन दिन दात कधन दिन नाना दिन दिन कृतिक ताकत का तातु का देगा ताकत ताती का ताते गणत है, कृतिक ताकत का तातु का देगा ताकत ताती का ताते गणत है, कृतिक ताकत का तातु का देगा ताकत ताती का ताते गणत है. अब इसको कैसे बजाया जाएगा? देखिए, कृतिक ताकत का तातु का देगा ताकत ताती का ताते गणत है, कृतिक ताकत का तातु का देगा ताकत ताती का ताते गणत है, कृतिक ताकत का तातु का देगा ताकत ताती का ताते गणत है. तो तरह तरह के निकास है, और जरूरी नहीं है कि कृतक यही बजाने चाहिए, खुले बोल में भी निकाल सकते हैं. हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ये बोल ऐसे ही बजाने चाहिए. ता वथुंग तक टथुंग तक दिग ताथुंग दिग तक कतरी गणित है, ये बजाएंगे तो इसकी ता वथुंग ता ऐसा बजाएंगे नहीं होता है. एक्चुअली प्रॉब्लम वही होती है क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन का इतना ज़्यादा स्कोप हो जाता है डांस में कि जब आप संगत कर रहे हो किसी डांसर के साथ, वो सही हो रहा है कि नहीं वो टेंशन हमेशा रहता है, उसमें ही आधी जान चली जाती है. पहले तो आपको किसी की नकल करनी पड़ती है. शुरू के टाइम में किसी जो डांस के साथ बजाने वाले तबला वादक है, वो इन बोलों को धाता कथुंगा को कैसे बजाते हैं. धा धाता कथुंगा तक देता धनिन धेता धाता कथुंगा तक टथका, ये डांस की बंदिश कहते हैं, मगर डांस की बंदिश नहीं है. उदय सिंह महाराज जी की बंदिश है, पखावज की है. धाता कथूंगा धागे देगे था धादिन दादे तक धाता कथूंगा तक कृतकथुन तो नाती टता, ये भी बंदिश डांस की नहीं है, ये बंदिश पखावत की है. कृतकथुन तो नाती टता ये उसकी निकास है. कृतकथुन तो नाती टता
लेकिन ता थई तत्, ये ही डांस के 3 बोल है। और ये ता थई तत् से त्राम तिगदा और दिग दिग, ये 3 बोल और आ गए, और टोटल 6 बोल ये है कथक के, और कुछ नहीं है, याद रखिए। और ये 6 बोलों से डांस होता है ऐसा नहीं है। डांस में पखावज के बोल लिए, तबले के बोल लिए, डांस ने तरह तरह के निसर्ग में आवाज आते हैं, उसको परमेलू कहते हैं। तादीदी तकथो दिगन्नाम धुमकट तकथो, तादी थोदी तकदी, तक तक धिग तक धलांग तक दधिगट थई ता थई, इसको परमेलू कहते हैं। दूसरा कुछ तो परमेलू दृग जागर धृग दिग जागर तका कुकु तिगदा दिग दिग थई, ये भी परमेलू है। तो इसकी निकास अपने आप करनी चाहिए। ता थई तत् कहेंगे तुम ता थई तत् करेंगे तो निकाल देंगे तुमको। भजन बोले पास बहुत हो गया, नेक्स्ट आइए। अब सोचना पड़ता है कलाकार को, तबला वादक को, और वो सोचने की क्षमता उसमें होती नहीं है। उसके लिए पहले तो तालीम लेनी चाहिए, किसी तबला वादक को मिलना चाहिए कि ये रचना है, इसको कैसे बजाए। 10-15 सिखा दी, आगे आपका सब कुछ चलते रहेगा। मिल गया? आप हैप्पी है? आप सवाल से हैप्पी है या नहीं? स्टार्टिंग पॉइंट तो मिला है। इससे भी आसान चाहिए। सीखने के लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है, सीखना तो पड़ेगा। क्या हुआ ना, खत्म करूं? एक बंदिश लेके खत्म करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ध्रुवची काहीतरी बंदिश में जिया में चल। एक यमन की बंदिश है। क्या बात। अब इसको मैंने निवृत्ति बुआ जी को सामने रखकर ये बंदिश की है, और उनका लय ताल के ऊपर बड़ा एक ऐसा अधिकार था, और सूक्ष्म लय को देखते थे। और तालों के 10 प्राण में एक ग्रह प्राण ऐसा है कि जो सम का वर्णन करता है। सम, अनाघात, अतीत और विषम, ऐसे 4 ग्रह होते हैं। तो वो चारों ग्रह एक ही टाइम में एक शब्द में दिखाई दे रहे हैं। जिया में बसकीनो श्याम, खबरिया एकहु नाही सुदहु नाही अबलीनो श्याम। हाँ,
जिया में बस किनो जामा 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 जी अनघात या अतीत, जी और या के बीच में सम और मैं विषम। जिया में बजगिनो जाम, जिया में बजगिनो जाम, जिया में बजगिनो जाम, जिया में बजगिनो जाम। खबरिया एक बुनाई सुदमुनाई हा ही जो आहे तो मे तर यमक आहे, विषम ग्रहाचं यमक आहे, जिथे मे लागतोय तिथेच ही लागलाय. हा हे म्युझिक मधलं यमक आहे. हा आज जामे बजगिनो जाम, जे जामे बजगिनो जाम, जे जामे बजगिनो जाम, जे जामे बजगिनो जाम. खबरिया खबरिया एक बुनाई सुदमुनाई अबलिनो जाम, जिया में बजगिनो जाम, जिया में बजगिनो जाम. किती ते धागत धागत ते धाते धागत धाते धागत धाते धागत धा धा जिया में बजगिनो जाम, जिया में बजगिनो जाम. किती ते धागत धजिया किती ते धागत धाते धागत 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 धजिया में बजगिनो जाम, जिया में बजगिनो जाम. खबरिया एक खबरिया एक बुनाई सुदमुनाई अबलिनो जाम, जिया में बजगिनो जाम, जिया में जानत नाही नारी जानत नाही. ये बेछूट लय कहते हैं, जैसे छूट की दान आप कहते हैं, ये बेछूट लय की बात है. मुकड़ा अंतरे का मुकड़ा कैसा बेछूट आ रहा है देखिए. जानत नाही नारी जानत नाही. कोई ले ठोस ले है और ये ख्याल में ही होती है. जानत नाही नारी जानत नाही नारी जानत नाही. किती तथे धागत तथे धागत जानत नाही. किती तथे धागत तथे धागत जानत नाही. नारी माने नाही हमारी माने नाही हमारी माने ना. तो अलग अलग मुझे मुखड़े दिखते हैं इसमें. जैसे जानत नहीं तो माने नहीं भी. जानत नहीं नारी जानत नहीं नारी माने नहीं हमारी माने ना. तगट तगट तते तगट तते तगट माने ना. तगट तते तगट तते तगट माने ना. तगट तगट तते तगट तते तगट 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 तते तगट तता तते तगट 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 तता ता माने नहीं हमारी माने ना. तगट तगट तते तगट तते तगट माने नहीं हमारी जानत नहीं हमारी जानत नहीं हमारी माने नहीं हमारी लगन लागे लगन लागे लगन
जागी अब बजताऊ बबरिया एक नाही सुधबू नाही अब गिनो जावा जिया वे बस गिनो जावा जिया वे बस गिनो जावा। अभी ये बंदिश मुझे अपने बंदिश बता रही है, छंद, वो बंदिश क्या छंद बता रही है, देखिए। आता ह्याचा ही जियाचा सूक्ष्म भेद काढलाय. Bazagino Jama, Jaya, Bazagino Jama, Jaya, Bazagino Jama, Jaya, Bazagino Jama, Jaya, Bazagino Jama. लय ताल के साथ मग्न होने का प्रयास करता हूं मैं. सबको मगन कर दिया आपने. थैंक यू सो मच. थैंक यू.